my dear students, welcome back to the channel. Sorry for a long break, but for some reason I was unable to make a new video. So without wasting our time, we will start today European literature. So this video I'm gonna put in the playlist of literature. So don't forget to watch it and don't forget to subscribe. So let's start. And one important thing is that I have added random important MCQs in the side notes of my video. So you can pause that video and note it down because they are going to help you a lot in your final exams. So our first author in this series is Petrarch, and obviously very important and famous author, Francesco Petrarch, who is an Italian scholar and poet in Renaissance Italy. As you know that Renaissance, it was just initiated from Italy. So one of the earliest humanists was Petrarch. So Petrarch is often called the father of humanism. He is also known for being the first to develop the concept of dark ages. And if we talk about his real name was Francesco Petrarca, but it was Latinized as Petrarch. And Dante had very close relationship with Petrarch family. Dante was like chacha to Petrarch as he was a friend of his father. So with his first large-scale work, Africa in Epic of Latin, is about the great Roman general Scipio, Africanus. So on 8th April 1341, he became the first poet laureate since antiquity. So it is very important MCQs. He traveled widely in Europe and served as an ambassador and has been called the first tourist. ये भी इसका खिताब है, so it is again very important. Petrarch is best known for his Italian poetry, notably the Canzoniere, which means songbook, and the Triumphi, which means triumph. So you need to memorize the meanings of these books as well. Moreover, Petrarch has collected his letters into two major sets of books called Epistulae Familiaris, and which means letters on family matters, and Seniles, which means letters of old age. So many consider him to be the father of the Renaissance as well. So Petrarch and his love for Laura are prominently featured in Muse, a novel by Canadian author Mary Novick in 2013. Whatever you will read about Petrarch, you will find his dedication of love and his sonnets to Laura, which is believed to be his beloved. So rhyme scheme of Petrarchans Sonnets is ABBA, ABBA, CDC, EDC एंड CDE एंड CDE. बहुत सारे बच्चे ना यूनिवर्सिटी टाइम पे इसको याद रखते हैं, अब्बा अब्बा CDC और CDE. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट Petrarch. You need to know according to your exams point of view. Obviously this is not enough to know about Petrarch, but these things are very important for exams point of view. You need to memorize these things. So having the side notes, Metamorphosis, Name of the Rose, and Invisible Cities. What is this? Metamorphosis, written by Ovid, has 15 books and it tells the creation of world till the death of Julius Caesar. And Name of the Rose is by E.C.O. Umberto, like Umberto Eco. Has historical, murder mystery in it. And Invisible Cities, it is written by Calvino. And it is a conversation between Kubla Khan and Marco Polo. एंड नाउ वी विल रीड दांते एलिग्री. जैसे मैंने आपको बताया कि दांते वाज एन अंकल टू पेट्रार्क, क्योंकि वो पेट्रार्क के फादर के फ्रेंड थे, तो वो भी इटली से थे जिस तरह से पेट्रार्क इटली से था. ठीक है. सो दांते एलिग्री वाज अ मेजर इटालियन पोइट born in Florence, Italy. He is called the father of Italian language and is famous for his Divine Comedy. His Divine Comedy is originally called Commedia, but later christened, Divine by Boccaccio. Boccaccio का जो एक फिगर है वो दांते में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम दांते की डिवाइन कॉमेडी को पढ़ते हैं then we find that Boccaccio has played a very major role in that. It is widely considered as the greatest literary work composed in Italian language. So he contributed in the upliftment of Tuscan dialect. ये जो MCQs मैंने किए हुए ना हाईलाइट, यही पेपर में आते हैं कि उसने किस डायलेक्ट को प्रमोट किया था. इट वॉज टस्कन डायलेक्ट. और इसमें इसने लिखी थी द न्यू लाइफ इन 1295. इन इटली दांते इज ऑफन रेफर्ड एज सेकंड सोमनो पोइटा, द सुप्रीम पोइट एंड सेकंड पोइटा. ठीक है कि इसके टाइटल्स हैं
जो कि इटली में यूज़ किए जाते हैं। दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो, ये तीनों जो हैं इनको क्या कहते हैं, द थ्री क्राउन्स या फिर द थ्री फाउंटेन्स, ठीक है। दांते फॉलन इन लव विद बीट्राइस whom he met first time when he was only 9. So he wrote several sonnets to Beatrice. और जब हम डिवाइन कॉमेडी को पढ़ते हैं तो तब बीट्राइस ही वो करेक्टर है जो कि उसको हेवन की तरफ लेके जाती है। द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ दांते वॉज द विटा दी दांते। ये क्योंकि फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज है, सो दैट्स वाई इसको इस तरह से लिखा जाता है। इट वॉज रिटन आफ्टर 1548 बाय बोकाशियो। सो अब ये जो डिवाइन कॉमेडी है ना, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स दांतेज जर्नी थ्रू हेल, इन्फर्नो, purgatorio and paradiso. There are three different stages in that divine comedy. ये पहला हिस्सा है hell यानी कि जहन्नम, एंड द सेकेंड वन इज़ purgatorio है, जिसको हम इस्लामिक टर्म्स में वो पुलसरात भी कहते हैं, जो कि जहन्नम और जन्नत के दरमियान में एक जगह है जिस पे काफ़ी लोगों को रखा जाएगा एंड दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस, पहला हेल, दूसरा purgatorio एंड थर्ड वन इज़ पैराडाइज यानी कि फाइनली जन्नत। सो ही इज़ फर्स्ट गाइडेड बाय रोमन पोइट वर्जिल एंड देन बाय बीट्राइस, जो कि उसकी बिलवड थी, द सब्जेक्ट ऑफ हिज लव, एंड वर्जिल गाइड्स हिम टू द इन्फर्नो एंड purgatorio while Beatrice guides him to paradiso। तो ये बातें ज़रूर याद रखें कि किस शख्स ने जो है उसको किस स्टेज ऑफ आफ्टर लाइफ दिखाया था। जिस तरह से बीट्राइस ने उसको पैराडीजो यानी कि पैराडाइज में गाइड किया कि यहाँ पे ये लोग हैं, और पर्गेटोरियो इन्फर्नो में वर्जिल ने गाइड किया। सो दांतेज अदर वर्क्स इंक्लूड सेकेंड कॉन्विवियो, द बैंक्वेट, a collection of his longest poems with an unfinished allegorical commentary, and Monarchia, which was written between 1304 to 1307, consist of 4 books। तो ये कुछ चीज़ें याद रख लें। द हाउस ऑफ फेम बाय चॉसर पैरोडीज दांतेज डिवाइन कॉमेडी। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि दांते ने तर्जा रीमा फॉर्म में लिखा, ठीक है। जिस तरह की हम डिवाइन कॉमेडी की बात करें, सो इट इज़ रिटन इन 3 लाइन तर्जा रीमा एंड इन 100 कैंटोस, ठीक है। द लॉन्ग एपिक पोएम डिवाइन कॉमेडी began in about 1308 and was finished just before Dante's death in 1321। दांते ने पहले इसको कॉमेडिया का नाम दिया था बिकॉज इट एंडेड हैप्पीली, ठीक है। इन इन्फर्नो यानी कि जो हेल वाला पोर्शन है, देयर आर 9 सर्कल्स ऑफ हेल। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस तरह से लिम्बो, लस्ट, ग्लटनी, ग्रीड, एंगर, हेरसे, वायलेंस और फ्रॉड वगैरह। अब इनको अगर डिटेल में पढ़ने लग जाए ना तो बहुत सारी इसमें इन डेप्थ चीज़ें निकलती हैं कि कौन से लोग थे जो लस्ट वाली लाइक हेल में उसके अजाब में जल रहे थे, ग्लटनी में कौन कौन से लोग आते थे, ग्रीड में कौन से आते थे, ठीक है। बट इन शॉर्ट ये कि उसने 2 अपोजिट चीज़ों को जो है ना वो कंपेयर किया है। जैसे अगर कोई बैड चीज़ में था तो ऑब्वियसली इन द वर्ड उसने गुड चीज़ से नफ़रत की थी, उसने मतलब बुरी बुरी बातें की होंगी, इस वजह से जो है ना वो उस बुरी चीज़ में था, उसका अजाब बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। द पैराडाइज हैज़ 9 लेवल्स विद गार्डन ऑफ ईडन एट द समिट एज अ 10th लेवल। Inferno begins on the day before Good Friday in 1300, where Dante himself is the narrator. On Good Friday, he is rescued by Virgil. Dante found Socrates, Heraclitus, Horace, Ovid, and different kind of personalities like Virgil and Beatrice, and many other important personalities. And next is Cervantes. And his full name was Miguel de Cervantes. He was a Spanish novelist, poet and playwright. His major novel, Don Quixote, जो कि फर्स्ट नावल समझा जाता है in Spanish language, is considered to be the first modern European novel, and it is a classic of Western literature and is regarded amongst the best works of fiction ever written. So his influence on the Spanish language has been so great that the language is often called language of Cervantes. He was dubbed the Prince of Wits. ये important MCQs है इसमें. In 1585, Cervantes published a pastoral novel named La Galetti. So इसका एक ही important work है जिसकी वजह से ये बहुत famous है, इसको बहुत ज़्यादा fame मिली. So this is Don Quixote, जो कि 1620s में English form में लिखा गया था, ठीक है. The full title of this novel is The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha, ठीक है. It is a Spanish novel in 2 volumes.
He recruits a simple farmer, Sancho Panza, as his squire, and it had a major influence on the literary community as evidenced by direct references in Alexander Dumas ने जो लिखा था ना द थ्री मस्केटियर्स 1844 में, उसमें इसके डायरेक्ट एविडेंस कोट किए गए हैं। मार्क ट्वाइन ने जो लिखा एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884 में, उसमें भी इसको कोट किया गया। एंड एडमंड रोस्टेंस का है साइरेनो डी बर्गेरिक एज वेल एज द वर्ड क्विक्सोटिक। यानी कि इन शॉर्ट ये कि इसको बहुत ज़्यादा कोट किया गया था इस लिटरेरी जॉनरा में। सो नेक्स्ट है बोकाशियो। ये वही बोकाशियो है जिसके बारे में आई टोल्ड यू कि दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो इन तीनों को इकट्ठा करके इनको बोलते हैं द थ्री क्राउन्स या फिर द थ्री फाउंटेन्स। Boccaccio was born in 1313 and he was died in 1375. Boccaccio was an Italian writer again, ठीक है। So Boccaccio के बारे में बात की जाए तो he was Italian writer, poet, correspondent of Petrarch and an important humanist. ये सब definitions जी Boccaccio की हैं। He was the first great writer of prose in any modern language, ठीक है। इसने एक प्रोज रोमांस लिखा था जिसका नाम था फिलोक्लो और ये बहुत फेमस हुआ था। He was born in Florence, Italy. He became a friend of fellow Florentine. ठीक है। Boccaccio wrote the Decameron and on famous women. He wrote the first Italian idyll. और Boccaccio की रिक्वेस्ट पे पेट्रार्क ने ट्रांसलेशन की थी द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ होमर, द इलियड एंड द ओडेसी इन लैटिन, ठीक है। सो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कंटेम्प्रेरीज भी थी बट दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। And he also wrote biography of Dante and he regarded as the inventor of ottava rima, ठीक है। हर राइटर का एक स्टाइल था, तो इनका स्टाइल था ओत्तावा रीमा। अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उस पर नज़र मार लेते हैं। द डीकैमरोन, द फिलोक्लो एंड फिलोस्ट्रेटो, ठीक है। फिलोस्ट्रेटो के बारे में एक शॉर्ट ये समरी है कि इट इज़ अ पोएम डिवाइडेड इनटू 8 कैंटोज एंड इट हाईली इंस्पायर्ड चॉसर एंड शेक्सपियर, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा राइटर था। डी कैमरून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिस तरह से इट कंटेन्स 100 स्टोरीज टोल्ड ओवर 10 days, 7 young women and 3 young men flee Florence during the Black Death and take refuge for 2 weeks in the countryside. They spend hot afternoons by telling stories. Each day, the group selects a king or queen among themselves who determines the general theme of the stories of that day. So theme of the first day of storytelling is very interesting and the theme is free to choose. Next है इमाइल ज़ोला। ये भी बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह तो हर एज में बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन राइटर्स को, उन ऑथर्स को कवर करवा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ोला के बारे में ना डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो आज तक देखे गए ना, उनमें कुछ ये हैं कि एज अ पोलिटिकल जर्नलिस्ट ज़ोला डिसलाइक नेपोलियन 3, ठीक है, ये इनके थर्ड नेपोलियन। हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था लॉ कन्फेशन डी डॉडे, इट अट्रैक्टेड पुलिस अटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। हिज फर्स्ट मेजर नॉवल वाज थेरेसे रेक्विन, इट वाज रिटन इन 1867। द 4 गॉस्पल्स ऑफ ज़ोला आर फर्टिलिटी, वर्क, ट्रूथ एंड जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एग्ज़ाम में ना 3 बता के तो चौथी पूछी जा सकती है, या फिर चारों को ऑप्शंस में लाइक कोई मिक्स अप पजल करके पूछा जा सकता है। तो ये चारों को जो है ना FWTJ के नाम से याद रख लें। अब है हमारे पास जीन पॉल सार्टर, जिसका नाम एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जीन पॉल सार्टर का जो रियल नेम है, जो फुल नेम है, जीन पॉल चार्ल्स एमर्ड सार्टर। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, political activist, biographer and literary critic. He was one of the key figures in the philosophy of existentialism, ठीक है। और ये 20th सेंचुरी का है, क्योंकि ये 1905 में पैदा हुआ था और 1980 में इसकी डेथ हुई है। और he had an open relationship with feminist theorist साइमन डी बीवर। और इसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? इसको 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन इसने इनकार कर दिया था, ठीक है। और ये MCQ ज़रूर आएगा, ज़रूर आता होता है अक्सर ना, कि 1964 में किस ऑथर ने नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार कर दिया था और उसने क्या कहा था। ही रिफ्यूज्ड इट, सेइंग दैट ही ऑलवेज डिक्लाइंड ऑफिशियल ऑनर्स एंड दैट अ राइटर शुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी टर्न्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन। हिज बेस्ट नोन हु इज़ क्लोज, यानी कि नो एग्जिस्ट,
no existence contains the famous line hell is other people। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है hell is other people, ये किस टेक्स्ट से उठाई गई है या किस लिए फेमस है, किसके साथ एसोसिएट की जाती है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद जीन पॉल सार्टर एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम हुइज क्लोज मीन्स नो एग्जिट। अब आपने वेटिंग फॉर गोडो का ड्रामा तो ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें भी एग्जिस्टेंशलिज्म के ही आइडियाज़ थे, यानी कि मीनिंग्स ऑफ बीइंग नथिंगनेस, वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर नो रीज़न, और बिल्कुल ना बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक टाइप ऑफ आइडियाज़ थे उसमें। सो फिक्शन में जो एक मेजर काम है ना इसका, वो है द रोड्स टू फ्रीडम। एक ट्रिलॉजी है, यानी कि इसमें तीन जो है ना वो वर्क्स हैं, द एज ऑफ रीज़न, द रेप्रीव एंड ट्रबल्ड स्लीप, जिसको मैंने आर्ट के निमोनिक डिवाइस से इसको याद करवाने की कोशिश की है। ए फॉर एज ऑफ रीज़न, आर फॉर रेप्रीव एंड टी फॉर ट्रबल्ड स्लीप। तो अब इसके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नोज़िया, जो कि एक दिल ख़राब होने की और वो वाली सिचुएशन होती है ना। तो अब इसके जो टाइटल्स होंगे ना वो भी बिल्कुल नथिंगनेस और एग्जिस्टेंशलिज्म आइडियाज़ को डिनोट कर रहे होंगे। द वॉल, द फ्लाइज, द प्राउड एंड द ब्यूटीफुल, द एज ऑफ रीज़न, द रिप्रीव, द रिस्पेक्टफुल प्रॉस्टिट्यूट, द डेवल एंड द गुड लॉर्ड। ठीक है, सो ये हैं कुछ चीज़ें जीन पॉल सॉर्टर के बारे में। अच्छा, सॉर्टर स्टेटेड इन हिज प्रीफेस टू फ्रांस फेनेंस द रेस्ट ऑफ द अर्थ दैट टू शूट डाउन अ यूरोपियन इज़ टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो शिकार। टू डिस्ट्रॉय एन ओप्रेसर एंड द मैन ही opposes at the same time. So there remains a dead man and a free man. क्लाइव जेम्स ने इस पे क्रिटिसिज्म किया है ये कहते हुए कि ही इज़ जस्ट ऑल अपोज, और ब्रायन सी एंडरसन ने इसको डिनाउंस किया है ये कहते हुए कि ही इज़ एन अपोलोजिस्ट फॉर टिरनी एंड टेरर एंड अ सपोर्टर ऑफ स्टेलिनिज्म, मेओइज्म एंड कैस्ट्रोज रिजीम इन क्यूबा। फिर एक 20th सेंचुरी का राइटर है एल्बर्ट कैमस। एल्बर्ट कैमस वॉज अ फ्रेंच नोबेल प्राइज विनिंग author, journalist and philosopher. His view contributed to the rise of philosophy known as absurdism. He was born in Algeria. In 1949, Camus founded the Group for International Liaisons to denounce two ideologies found in both the USSR and the USA. So he wrote in his essay, The Rebel, that his whole life was devoted to opposing the philosophy of nihilism while still delving deeply into individual freedom. Camus did not consider himself to be an existentialist despite usually being classified as one even in his lifetime. He was second youngest recipient at the age of 44 of Nobel Prize of Literature after Rudyard Kipling at the age of 42. तो अब ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि सबसे यंगेस्ट एवर जो एक बंदा था जिसको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था वो था रुडयार्ड किपलिंग, जिसको 42 की एज में मिला था, और उसके बाद 44 की एज में एल्बर्ट कैमस को मिला था। सो इट वाज ऑब्वियसली वन ऑफ हिज बिगेस्ट अचीवमेंट्स। इसके जो वर्क्स हैं ना उनके टाइटल्स इस तरह से हैं, अ हैप्पी डेथ एंड द फर्स्ट मैन, द स्ट्रेंजर्स, मर्सल्ट, द सेकंड वाज एन अनफिनिश्ड नॉवल, द फर्स्ट मैन. It is an autobiographical work about his childhood in Algeria. So Camus' first significant contribution to philosophy was his idea of the absurd. Absurdism का जो आइडिया है ना, ये जो बच्चों ने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा हुआ है उनको अच्छी तरीके से आइडिया होगा। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जिस तरह द स्ट्रेंजर्स, द प्लेग, द फॉल, अ हैप्पी डेथ, द फर्स्ट मैन। ठीक है, तो द फर्स्ट मैन, फॉल caused him a happy death and fall was a plague caused by the stranger. यानी कि एक शख्स है वो फॉल कर गया है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई हमाशा आ गया, वो फॉल कर गया है, एंड इट कॉज्ड हिम अ हैप्पी डेथ। एंड वो कौन सा फॉल था? एंड फॉल वाज अ प्लेग, वो कोई और फॉल नहीं था बल्कि वो एक उसके प्लेग लग गया था, ठीक है, कॉज्ड बाय द स्ट्रेंजर्स। उसके बाद वी विल रीड मिलान कुंडरा। मिलान कुंडरा जो है ना वो एक सीजैक रिपब्लिक का रहने वाला है, एंड ही वाज बोर्न इन 1929 और वो अभी तक हयात है, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना जो हमने याद रखना है वो है द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। इट इज़ अ 1984 नॉवल बाय मिलान कुंडरा अबाउट टू वुमेन, टू मैन एंड डॉग एंड देयर लाइव्स इन द प्रेग स्प्रिंग पीरियड ऑफ सीजेक Oslovakia history in 1968.
अब जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उसमें एक टॉमस है, एक टेरेसा है, सबीना है, फ्रेंड्स है। अब ये जो टॉमस है ना, ये एक सर्जन है और उसकी जो वाइफ है टेरेसा, वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, ठीक है। यानी कि एक सर्जन और एक फ़ोटोग्राफ़र की आपस में शादी हुई हुई है। लेकिन टॉमस जो है ना, वो एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम है सबीना या सेबाइना, वट एवर यू कॉल इट। वो सबीना से प्यार करता है, वो एक फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट है। और जो फ्रेंड्स है वो एक स्विस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है एंड लवर ऑफ सबीना, यानी कि सबीना के दो लवर्स हैं, एक फ्रेंड्स जो कि प्रोफेसर है और एक टॉमस जो कि सर्जन है। और जो सबीना ना, वो एक फुल स्पिरिटेड गर्ल्स ही है। एंड एंड टॉमस का एक सन भी है, उसका नाम साइमन है, जो कि उसकी एक अर्लियर मैरिज से है ना। तो इस सब में ना ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग किसने लिखा और ये कब लिखा गया, और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम और उनके जो भी प्रोफेशंस हैं उनको ज़हन में रख लें। अगेन आता है हेनरिक इब्सन, द मोस्ट वांटेड पर्सन, जो कि एक नॉर्वियन प्ले राइट था, थिएटर डायरेक्टर भी था और पोइट भी था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रियलिज़म, ठीक है। रियलिज़म जब स्टार्ट होते हैं ना, तो उसका तमगा हेनरिक इब्सन के सर जाता है। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर। His major works include Brand, Peer Giant, An Enemy of the People, Emperor and Galilea, A Doll's House, Hedda Gabler, Ghost, The Wild Duck, and Rosmersholm, The Master Builder. इस पे भी काफ़ी क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। जिस तरह से रिचर्ड हॉर्नबाई ने कहा था, ही डिस्क्राइब्ड हिम एज अ प्रोफाउंड पोएटिक ड्रामेटिस्ट, द बेस्ट सिंस शेक्सपियर, ठीक है। He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1903, 1902 and 1904, लेकिन इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला एंड आई एम एस्टोनिश्ड कि इसको क्यों नहीं मिला। He wrote his plays in Danish language. He was the father of Prime Minister Sigurd Ibsen. Sigurd Ibsen प्राइम मिनिस्टर था, उसका जो है ना ये फादर था। और जो इसका फर्स्ट स्टेज्ड प्ले था ना, जिसको प्ले किया गया स्टेज के ऊपर, इट्स नेम वॉज द बरियल माउंट। इसने कैटलिनिया के नाम से एक ट्रेजेडी भी लिखी थी, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं किया गया था। अब इसके वर्क्स में ना निमोनिक डिवाइसेस की भी ज़रूरत है। जिस तरह से इसके एक वर्क है कैटलाइन, द बरियल माउंट और द वेरियर्स, बैरो, सेंट जॉन्स ईव, द प्रिटेंडर्स, पियर जाइंट, द लीग ऑफ यूथ, एम्पियर एंड गलीलिया, पिलर्स ऑफ सोसाइटी, अ डॉल्स हाउस, घोस्ट and Rosmersholm and the Wild Duck and the Lady from the Sea। तो इसकी ना 2-3 डिफरेंट लाइंस में निमोनिक्स बनाए गए हैं, क्योंकि इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इसको एक ही पैराग्राफ में, एक ही सेंटेंस में जो है ना इन सब नेम्स को किया जाए अरेंज। हेडा गैबलर का आपने नाम याद रखना है कि जैसे ये किसी ब्रांड का नाम है, तो इसका जो एक वर्क है ना वो ब्रांड के नाम से भी है और एक वर्क हेडा गैबलर के नाम से है। तो हेडा गैबलर इज़ अ फेमस ब्रांड, 2 वर्क्स इसमें कवर हो गए। एट सेंट जॉन्स ईव देयर वॉज अ बरियल ऑफ द विल्ड डक, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब कैटलाइन और ये जो है ना रॉम्सटॉर्म, इनको आपने अलग से याद रखना है बस, कि ये किसी और के नहीं है, ये सिर्फ हेनरिक इब्सन के हैं। द मास्टर बिल्डर बिल्ड्स एम्परर एंड ग्लिलिया एंड पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ये भी हो गया। Ghost and peer giants, they are the enemies of the people. League of youth pretends to see lady, ये 4-5 जो है ना इसकी निमोनिक डिवाइसेस हैं। अब एक बहुत फेमस ड्रामा अ डॉल्स हाउस, जिसको जो है ना वो 3 एक्ट प्ले में लिखा गया, और उसके जो पहले 2 एक्ट हैं वो तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस हुए और काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया था सोसाइटी में कि इसने क्या लिख दिया है भाई, क्योंकि उसको फादर ऑफ रियलिज़म कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिज़म दी गई थी। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर टॉरवर्ल्ड एंड मिसेस टॉरवर्ल्ड, यानी कि नोरा और टॉरवर्ल्ड होते हैं, और इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है। अब ये जो ड्रामा, ये जो प्ले होता है ना, ये ओपन होता है क्रिसमस ईव को। एट द बिगनिंग नोरा हेल्मर एंड टॉरवर्ल्ड हेल्मर वेरी हैप्पी कपल दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में ना उनके अंदर कुछ उनकी केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे मसले आते हैं। व्हेन टॉरवर्ल्ड सीज नोराज क्रिसमस गिफ्ट, उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट ले लिया, तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि किस तरह के हमारे हालात हैं। मतलब वो गिफ्ट प्यार से एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर वो चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से नोरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सो टॉरवर्ल्ड हैज़ रिसेंटली obtained a new position in bank, so they are able to afford a more comfortable life। लेकिन टॉरवर्ल्ड को फिर भी जो है ना
वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, और ये चीज़ नोरा को अच्छी नहीं लगती। हेलेने द मेड, उनकी एक मेड होती है, उसका नाम होता है हेलेने या फिर हेलिन बोल लें, वो इन्फॉर्म करती है टॉवर्ड को कि डॉक्टर रैंक आया है, उसका फ्रेंड, ठीक है। और स्टोरी में ना बाद में जाके हमें पता चलता है कि डॉक्टर रैंक जो है ना वो नोरा से मोहब्बत करने लग गया है। वो कहते हैं कि मेरा तुम पे दिल आ गया। अब हमारे पास एक और करेक्टर है, मिस्टर लिंडे और मिसेस लिंडे वगैरह का करेक्टर है, ठीक है। अब नोरा जो होती है ना वो अपनी सारी बातें मिसेस लिंडे को रिवील करती है कि ये हमारे घर मसले हैं, और एक दफ़ा क्या हुआ था कि इलीगली जो है ना उसने अपने अब्बा से कुछ रकम बोरो की थी सिर्फ अपने हस्बैंड का वो कर्ज़ उतारने के लिए। तो इस बात का ना उसके हस्बैंड को पता कोई नहीं है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा तो टॉवर्ड इस तरह का बंदा है कि वो फिर से उस पर चिल्लाने लग जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो मिसेस लिंडे होती है ना वो सोच लेती है कि वो ये सब बातें ज़रूर बताएगी इसके हस्बैंड को, क्योंकि मिसेस लिंडे जो थी ना वो क्रॉगस्टेड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। यानी कि क्रॉगस्टेड एंड मिसेस लिंडे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। और क्रॉगस्टेड वही शख्स है जो नोरा को ब्लैकमेल करता है कि तुम जो है ना वो अपने हस्बैंड से कह के तो मेरा रैंक बैंक में ऊपर करवाओ, अदरवाइज़ जो है ना उसको तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये सारी स्टोरी होती है। तो एट देन क्या होता है कि इनको ऐसा लगता है मिसेस लिंडे वगैरह को भी कि अगर उसको स्टोरी पता चल जाएगी ना रियलिटी, तो वो समझ जाएगा, वो बोलेगा कि ये नोरा मुझसे प्यार करती है। लेकिन जब उसको पता चलता है तो वो नोरा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, नोरा के और उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वो डिसाइड करती है कि अपनी 8 साल की जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको वो ख़त्म करेगी, और अपने आप को जो है ना डिस्कवर करने के लिए, अपनी ज़ात को पहचानने के लिए वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। वो समझती है कि इस सोसाइटी में जो औरत है ना वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि दूसरों को खुश करे, ना कि अपनी ज़ात को, अपने ज़मीर को खुश करे। तो इसके साथ कहानी भी एंड हो जाती है और हमारी आज की वीडियो भी एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अफ्रीकन लिटरेचर को इसी तरह कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।